बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ occurs in the roots of gymnosperms and in most of the dicots, and in certain dicotyledonous roots this secondary growth does not occur, and the roots of monocots they remain primary throughout their life, मीन के उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नहीं होती है मोनोकॉट्स की जो रूट्स हैं उनमें। नाउ द सेकेंडरी ग्रोथ which occurs in the roots also, like dicot stem, this occurs by the activity of the vascular cambium and cork cambium, जिसको हम फेलोजिन भी कहते हैं। डाइकॉट स्टेम की तरह रूट में भी जो है वो सेकेंडरी टिश्यूज जो प्रोड्यूस होते हैं, दे आर सिमिलर टू द टिश्यूज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द डाइकॉट स्टेम, बट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ these vascular tissues, it is different in the roots as compared to the dicot stem. Before going to start the secondary growth in the dicot root, we must know what is the structure of the dicot root and what type of vascular bundles are present in these roots. Now vascular bundles in the dicot root, they are radial, and xylem which is present in these vascular bundles, it is exarch. Let's see this diagram in which we are seeing here the vascular bundles in radial arrangement. Radial arrangement is that here is the stellar region. Radial arrangement is that in which the xylem group and the phloem group, these are not present on the same radius, but these are present side by side on the different radii, means they are present in alternate patches. This is xylem group, this is next patch जो है वो phloem group का है, then next again जो है वो xylem है, then next again phloem, then next again xylem, phloem. In this way the patches of these xylem and phloem, they alternate with each other and the number of xylem groups is equal to the number of the phloem groups. Now the exact position of the xylem is that in which the metaxylem are present towards the pith region, towards the center, while protoxylem elements of the xylem, they are present away from the center or towards the outer side. This position is known as the exarch position. This is opposite to the stem, in which protoxylem is present towards the center while metaxylem is present towards the outward side. तो xylem stem और जो xylem root है उसमें जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती है। ये थी रेडियल अरेंजमेंट कि इसमें जो है वो सेम रेडियस पर जो है वो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि अलग अलग पैचेस की फॉर्म में, अल्टरनेट पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम जो है एक डाइकॉट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो देख रहे हैं और इसमें जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एपिडर्मस, जिसको एपिब्लेमा भी कहते हैं क्योंकि रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, देयरफॉर दिस एपिडर्मस इज नोन एज द एपिब्लेमा। बिलो द एपिडर्मस cortex is present, and in this cortex parenchyma cells are present with intercellular spaces, and the innermost layer of this cortex is known as the endodermis. Here is endodermis, and then below the endodermis pericycle is present which surrounds the stellar region of the root. Now in this root the pith is present very little, or it is usually absent in the roots mostly, यानी या तो प्रेजेंट होती है, बहुत कम होती है, या फिर जो है वो एब्सेंट होती है। तो इसमें जो है ये अगर हम देखें तो ये फ्लोएम ग्रुप का सेल्स है,
This is xylem group. This is again the phloem group of cell. Again xylem, phloem and xylem. तो इसमें जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द जाइलम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटोजाइलम है इट इज़ प्रेजेंट टूवर्ड्स द आउटर साइड टूवर्ड द एंडोडर्मस पेरिसाइकल अवे फ्रॉम द पिथ, वाइल मेटाजाइलम सेल आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है वो इसको एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो कहा जाता है। तो इस पे जो है वो अगर आप देखें तो हमें 4 जो हैं 4 जाइलम पैचेस नज़र आ रहे हैं और 4 ही जो है वो इसमें जो है वो फ्लोएम के पैचेस जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो दिस रूट इन विच द नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस जो है दिस आर 4, दैट रूट इज़ नोन एज द टेट्रार्च। मीन के 4 ग्रुप्स जो है प्रेजेंट है, 4 आर्चेस, 4 रिब्स, 4 ग्रुप्स ऑफ जाइलम एंड 4 फ्लोएम जो है प्रेजेंट होते हैं। डाइकॉट रूट्स जो हैं वो टेट्रार्च भी हो सकती हैं, ट्राइआर्च भी हो सकती हैं और डाइआर्च एंड मोनोआर्च भी जो है वो हो सकती हैं। तो दिस इज़ द रूट जिसमें कि टेट्रार्च कंडीशन जो है दिखाई गई है कि 4 जो है वो जाइलम ग्रुप्स हैं और 4 ही जो है वो फ्लोएम के जो है वो ग्रुप्स हैं। फिर इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो डायग्राम है देख रहे हैं, इसमें जो है वो हमें ट्राइआर्च कंडीशन जो है वो रूट की नज़र आ रही है। इसमें हम देख रहे हैं कि एपिब्लेमा रूट हेयर प्रेजेंट है, देन बिलो दिस कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे जो है वो दिस इज़ एंडोडर्मस और एंडोडर्मस के नीचे जो है वो पेरिसाइकल लेयर जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं क्लियरली। एंड दिस इज़ द सेक्शन ऑफ द रूट इन विच ट्राइआर्च कंडीशन इज़ क्लियर, मीन के यहाँ पर 3 जो है वो जाइलम के पैचेस हैं और 3 ही जो है वो अल्टरनेट फ्लोएम के पैचेस हैं। तो दिस रूट जिसमें कि 3 ग्रुप्स प्रेजेंट हों, दिस इज़ नोन एज द ट्राइआर्च रूट। इसी तरह से रूट्स जो हैं वो मोनआर्च और जो है वो डायआर्च भी हो सकती हैं। तो इसमें ये जो डायग्राम है नेक्स्ट, इसमें हमें जो है वो ट्रिडोफाइट ग्रुप का जो जीनस जो है वो मार्सिलिया उसके अंदर जो है वो दिखाई गई है और इसमें जो है वो मोनआर्च रूट भी होती है और डायआर्च भी होती है। मोनआर्च मीन के सेंटर में जो है वो जाइलम का एक बंडल पैच जो है प्रेजेंट होता है और उसके साइड पर जो है वो फ्लोएम प्रेजेंट होता है, जबकि डायआर्च जो है उसमें 2 जो है वो जाइलम के पैचेस होंगे और 2 ही जो है वो फ्लोएम के पैचेस होंगे। तो इस तरह से जो डाइकॉट रूट्स हैं उनके अंदर जो है वो स्टीलर रीजन जो है वो उसमें जो है वो रूट जो होती है वो मोनआर्च, डायआर्च, ट्राइआर्च, टेट्रार्च भी हो सकती है और बहुत कम कोई कंडीशन होगी कि जिसमें जो है वो पोलीआर्च कंडीशन होगी और स्पेशली पोलीआर्च कंडीशन जो है दिस इज यूजुअली अकर्स इन द मोनोकॉट रूट्स। अब इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है और सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होने से पहले जो है वो हमने स्टेम में भी पढ़ा था कि पहले कैम्बियम रिंग जो है वो बनता है। कैम्बियम रिंग कैसे बनता है, स्टेम के अंदर के फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है उसके मिलकर बनने से जो है वो बनता है कैम्बियम रिंग। लेकिन यहाँ पर कैम्बियम रिंग की जो फॉर्मेशन है वो स्टेम से जो है वो डिफरेंट होगी। रूट्स में जो कैम्बियम रिंग बनता है ये मेनली जो है बनता है फ्लोएम के नीचे से बनना शुरू होता है और उसके बाद प्रोटोजाइलम के ऊपर जो पेरिसाइकल रीजन होती है उससे जो है वो बनना डेवलप होता है और फिर जब ये ग्रो करते हैं तो फिर उससे जो है वो कंप्लीट कैम्बियम रिंग जो है वो ज्वाइन करके जो है कंप्लीट कैम्बियम रिंग बनता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से जो है वो कैम्बियम रिंग की जो है वो फॉर्मेशन होती है। इसमें यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर जो है वो टेट्रार्च रूट जो है उसका सेक्शन हमें दिखाया गया है और इसमें जो है आप देखें कि 4 जो है वो जाइलम के ग्रुप्स हैं और 4 ही ये जो है वो अल्टरनेट जो है वो फ्लोएम के पैचेस हैं। तो वैसे ही कैम्बियम जो है वो बनना स्टार्ट होती है, उसमें जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो उससे कैम्बियम रिंग की डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होती है कि इसमें जो है वो the groups of phloem cells below which the parenchyma, some of the parenchyma cells, they become meristematic and they form the
कैम्बियम स्ट्रिप। ये देखें, ये जो है वो फ्लोएम जो है उसके नीचे ये पेरेन्काइमा सेल जो है वो उन्होंने मेरिस्टेमेटिक मतलब डिवाइड होकर, तो यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रिप जो है वो सेल्स की बनी, जिसको जो है वो कैम्बियम स्ट्रिप हम कहेंगे। इसी तरह से हर फ्लोएम जो है वो उसके नीचे जो है वो कैम्बियम स्ट्रिप जो है वो बनेगी, एंड द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स फॉर्म विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द फ्लोएम ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट इन द रूट। तो यहाँ पर 4 ग्रुप्स हैं, तो इसलिए 4 स्ट्रिप्स जो है बनेंगे। देन नेक्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप्स विल बी फॉर्म्ड ऑपोजिट टू द प्रोटोजाइलम ऑफ द जाइलम, यानी कि जहाँ पर जाइलम ग्रुप प्रेजेंट है, जाइलम में जहाँ पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, उस प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट जो पेरिसाइकल रीजन में सेल प्रेजेंट होंगे, दे बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड दे फॉर्म द कैम्बियम स्ट्रिप। ये देखें, यहाँ पर हर जो जाइलम है ग्रुप, उसके ऑपोजिट उसके आगे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, दे विल फॉर्म द कैम्बियम स्ट्रिप, यानी कि कैम्बियम स्ट्रिप जो प्रोटोजाइलम के ऊपर जो है वो बनेगी। देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रिप्स above the protoxylem and below the phloem, then what happens that the cambial strips which are formed below the phloem, they extend, यानी उनमें जो है वो डिवीजन होती जाएगी और स्ट्रिप्स जो हैं वो एक्सटेंड करती जाएंगी, और एक्सटेंड दोनों साइड पर, और ये जो है वो जो पेरिसाइकल से जो स्ट्रिप बनी हुई है उसके साथ जो है वो ज्वाइन कर जाएंगी। इस तरह से यहाँ से इधर, इस तरह से इस स्ट्रिप जो है ये यहाँ पर ज्वाइन करेगी, और ये स्ट्रिप इस साइड से जो है यहाँ पर ज्वाइन करेगी, एंड इन दिस वे दीज 2 स्ट्रिप्स ऑफ द जाइलम एंड द फ्लोएम, व्हेन दीज ज्वाइन टुगेदर ऑल दीज स्ट्रिप्स, देन द कैम्बियम रिंग इज फॉर्म्ड। एंड दिस कैम्बियम रिंग जो है इट इज़ वेवी। वाई इट इज़ वेवी? because this cambium ring जो है it is formed by the cells below the phloem, and these cells then these strips, these join to the strips formed by the pericycle cell which are present above the xylem। तो इस तरह से ये जो है वो हमें वेवी कैम्बियम रिंग जो है वो नज़र आता है स्ट्रिप्स को ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि उसका एक पार्ट जो है वो जाइलम के ऊपर से गुजर रहा है और दूसरा पार्ट जो है वो फ्लोएम के नीचे से। तो इस तरह से हमें जो है वो वेवी नेचर जो है आउटलाइन में जो है वो कैम्बियम रिंग जो है वो नज़र आता है। नाउ व्हेन दिस कैम्बियम रिंग इज फॉर्म्ड, देन द कैम्बियम which is present below the phloem, it is more active and it produces the elements on the lower side earlier as compared to the elements on the above side। मीन ये देखें कि ये जो फ्लोएम के नीचे कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है पार्ट, वो नीचे से जो है उसने सेल जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं, और ये आपको पता है कि लोअर साइड पर कौन से सेल जो है प्रोड्यूस करेगी, ये जाइलम सेल जो है वो नीचे वाली साइड पर जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। तो अब इसमें जो है वो यानी कि इस रीजन के सेल जो हैं वो फास्टर रेट पर जो है वो अपने डेरिवेटिव्स जो हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे एज़ कम्पेयर टू द आउटर साइड। तो इसमें जो है अब नीचे वाले जो सेल्स हैं, ये जो डेरिवेटिव्स हैं, ये बनाएंगे जाइलम मदर सेल्स, एंड द डेरिवेटिव विच आर प्रोड्यूस्ड ऑन द अपर साइड ऑफ दिस कैम्बियम रिंग जो है ये जो है वो फ्लोएम मदर सेल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो आउटर साइड की तरफ जो है वो फ्लोएम के एलिमेंट्स जो है उसमें डिफ्रेंशिएट होंगे, और जाइलम मदर सेल जो हैं वो जाइलम एलिमेंट्स जो हैं वो उनमें डिफ्रेंशिएट होंगे। तो अब इसमें जो है जैसे ही ये जो है वो कैम्बियम रिंग कंप्लीट होने के बाद इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। इट स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस द जाइलम मदर सेल ऑन द लोअर साइड एंड फ्लोएम मदर सेल ऑन द आउटर साइड इन द सेम वे एज वी हैव स्टडीड इन द डाइकोट स्टेम। ये कैम्बियम के जो सेल्स हैं वो अल्टरनेटली जो है वो डिवाइड करते हैं, एक साइड पर जो है वो एक दफ़ा में एक ही साइड पर सेल प्रोड्यूस करेंगे, या तो वो जाइलम मदर सेल्स होंगे और दे विल बी द फ्लोएम मदर सेल्स। तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि जाइलम मदर सेल जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, लोअर साइड पर ज़्यादा जो है वो डिवीजन होती है। तो यहाँ पर भी जो है वो जाइलम मदर सेल जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे एज़ कम्पेयर टू द फ्लोएम। तो अब जब इसमें जाइलम और फ्लोएम मदर सेल जो है जब प्रोड्यूस हो जाएंगे दोनों साइड पर,
तो इसके बाद जो है अब जो है वो सेकेंडरी जाइलम जो है वो बनना शुरू हो जाता है और वो एलिमेंट्स में जो है वो उसमें डिफ्रेंसिएशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब हम जो देखेंगे कि प्राइमरी जाइलम जो है उसकी नेचर क्या होती है, मतलब उसके साथ क्या होता है, एंड सेकेंडरी जाइलम विच इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैम्बियम टुवर्ड्स द इनर साइड, व्हाट हैपन्स विद इट, क्या चेंजेस जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। तो इसमें जो है वो जब जाइलम मदर सेल और फ्लोएम मदर सेल जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें उससे पहले जब ये वेवी पोजीशन में होती है तो फिर ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाली साइड पर जाइलम मदर सेल जब ज़्यादा बनने शुरू होते हैं तो ये फ्लोएम को और जो कैम्बियम होती है इसको ऊपर की तरफ जो है वो पुश करना शुरू कर देती है और इसका ये जो वेवी नेचर है ये भी जो है वो डिसअपीयर हो जाती है एंड दिस कैम्बियम रिंग जो है ये स्ट्रेट होना शुरू हो जाता है और ये अल्टीमेटली जो है वो सर्कुलर फॉर्म में जो है वो आ जाता है। सर्कुलर फॉर्म में आने के बाद ये कंटिन्यूस अब इसमें जो है वो कैम्बियम एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और इसमें जो है वो दोनों साइड पर अब ये टिश्यूज जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, न्यू डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस करता है जो कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो है उसमें डिफ्रेंशिएट होते जाएंगे। तो इसमें जो है अब हम देखें तो जब सेकेंडरी जाइलम जो बनता है नीचे इनर साइड की तरफ, तो डिफ्रेंशिएट होने के बाद इससे जो है मेनली लार्ज वेसल्स प्रोड्यूस होते हैं, ट्रैकेट्स प्रोड्यूस होते हैं और उसके अलावा जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वुड फाइबर्स भी प्रोड्यूस होते हैं और जाइलम पेरेन्काइमा भी जो है वो इससे प्रोड्यूस होते हैं। और कैम्बियम की एक्टिविटी जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इनर साइड की तरफ जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए सेकेंडरी जाइलम जो है ये मेन बल्क ऑफ द रूट जो है वो फॉर्म करता है, यानी कि रूट का मेन सेंट्रल पार्ट जो है, मेन बल्क जो है वो रूट की सेकेंडरी जाइलम जो है वो उससे बनती है। फिर इसी तरह से जो प्राइमरी जाइलम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ये जो पहले आपको सेपरेट जो है वो नज़र आ रहे थे पैचेस प्राइमरी जाइलम के, अब ये सेकेंडरी जाइलम के प्रोड्यूस होने के बाद ये सेंटर की तरफ जो है पुश होते जाएंगे, दिस जॉइन विद ईच अदर और ये एक दूसरे के साथ जो है वो मिल जाते हैं और फिर उसके बाद जो सेकेंडरी जाइलम के अंदर जो है वो एम्बेडेड फॉर्म में जो है वो आ जाते हैं और इसमें जो है वो क्योंकि सेकेंडरी जाइलम जो है वो कंटिन्यूस सिलेंडर जो है वो की फॉर्म में आ जाता है और ये सॉलिड कोर की फॉर्म में भी जो है मेनली जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो प्राइमरी जाइलम जो है वो इसके अंदर जो है वो पुश्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और मोस्ट केसेस में समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये जो प्राइमरी जाइलम होता है इट बिकम्स क्रश्ड, ये जो है वो क्रश हो जाता है और मेन सेंट्रल पार्ट में जो है वो सिर्फ ये थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, जबकि मेन बल्क उसकी जो है वो सेकेंडरी जाइलम से ही जो है वो फिल होती है। अब जब इसमें कंटिन्यूसली सेकेंडरी टिश्यूज जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑन द इनर साइड सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस्ड एंड ऑन द आउटर साइड जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और प्राइमरी फ्लोएम जो है वो भी ऊपर की तरफ जो है वो जो है पुश हो रहा है बाय द कंटिन्यूस एक्टिविटी ऑफ दिस कैम्बियम इन द रूट। Also, it produces a large number of cells in the form of secondary phloem and secondary xylem. The pressure is exerted on the cortical cells and ultimately on the epidermal cells. तो प्रेशर एग्जर्ट होने के बाद कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं फर्स्ट दे divide anticlinally to keep pace with the developing inner tissues, but ultimately they become ruptured and crushed, and so it also happens with the epidermis, also epiblemma, and this epidermis it is also ruptured. So when this epidermis is ruptured, then here the cells of these cortical lower layers of the corticals and especially the pericycle cell, they become meristematic and they produce the phallogen or core cambium, and this core cambium which is produced by the meristematic cells of this pericycle, they give rise the cork cells towards the outer side and phalloderm cells towards the lower side। और कैम्बियम जो होती है ये सेंटर में प्रेजेंट होती है, फैलोजिन और कॉर्क कैम्बियम, आउटर साइड पर कॉर्क सेल प्रोड्यूस करती है कॉर्क टिश्यू और इनर साइड पर फैलोडर्म सेल जो है वो प्रोड्यूस करती है। Now when this secondary growth is continuously occurring, then due to the activity of the continuous production of these secondary tissues, the epidermis and the cortical cells,
दे बिकम स्लॉड ऑफ, मीन के उसमें जो है वो उनकी रप्चरिंग हो जाती है। पहले जो है वो पुश होते रहते हैं, फिर अल्टीमेटली क्रश हो जाते हैं, फिर स्लॉड ऑफ हो जाते हैं। ऑन द एंडोडर्मस सेल्स और ऑल्सो दिस ऑल्सो बिहेव जस्ट लाइक दिस, कि उनमें भी जो है रप्चरिंग और क्रशिंग जो है वो उनकी स्लॉइंग ऑफ जो है वो होती है, डैमेज होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं, डिसअपीयर होते जाते हैं। तो उसकी जगह पर वहाँ पर जो है वो सेकेंडरी टिश्यू यानी कि फेलोजन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है रूट्स में भी। तो जो मेच्योर डाइकॉट रूट है उसमें भी मेन बल्क जो है वो रूट का उसमें जो है वो एपिडर्मस, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मस की बजाय हमें जो है वो आउटर लेयर जो है उसमें कॉर्कैम्बियम की जो है वो नज़र आती है। कॉर्कैम्बियम से प्रोड्यूस होने वाले सेल जो है वो नज़र आते हैं, यानी कि पेरिडर्म, और उसके इनर साइड पर जो है वेस्कुलर कैम्बियम से प्रोड्यूस होने वाले सेकेंडरी जाइलम और जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम जो है वो नज़र आता है। तो इस तरह से जो है वो रूट के अंदर भी जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अब हमने जो है वो स्टेम और रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है। और उसके बाद जो है यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट के अंदर जो सेकेंडरी टिश्यूज़ प्रोड्यूस होते हैं उनकी डिटेल हमने जो है वो पढ़ ली है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें जो है वो हम पढ़ेंगे कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से प्रोड्यूस होने वाले जो सेकेंडरी टिश्यूज़ हैं वो किस तरह के होते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।